الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 5 گرامر، جس میں ہم کانا اور اس کی بہنیں یہ سیکھیں گے۔ صفحہ 16 اشارہ سی کے ساتھ۔ پچھلے لیسن میں ہم نے عربی زبان کی قوت اور خوبصورتی کو بھی دیکھا، اور آخری حرکات کے بدلنے کا جو اثر ہے اس کو بھی ہم نے جان لیا۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ بھئی نحو کی ضرورت کیا ہے، آخر ہم نحو کو پڑھیں تو پڑھیں کیوں؟ تو جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں اور آج پھر ہم دہرا رہے ہیں اس بات کو کہ ہر سطر میں قرآن کریم کی ہر لائن میں تقریباً 3 اسما ہوتے ہیں۔ اسم کی جمع ہے اسما۔ ان پر حرکات جو سمجھ میں آتی ہے وہ نحو پڑھنے کے بعد صاف طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پڑھتے وقت جو ہے غلطی کا امکان کم ہوگا۔ مثلا آپ ان کو ان یا ان نہیں پڑھیں گے، اور جب آپ ترجمہ وغیرہ کریں گے نا تو اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ جملہ میں کون تو فاعل ہے اور کون مفعول بھی ہے وغیرہ، اور یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا، آپ کو کنفیوژن بھی نہیں ہوگی زبر ہے زیر ہے یا پیش ہے۔ جیسے آپ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تجری ہے یا جناتن تجری ہے۔ یہ نحو کے بعد، نحو کا سبق پڑھنے کے بعد آپ کو صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں تو تن پڑھنا ہے اور کہاں تن پڑھنا ہے، اور پھر عربی بول چال میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اور جب آپ عربی کتابیں پڑھیں گے نا تو پھر ان کتابوں کا سمجھنا بھی آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا انا اور اس کی بہنیں، جیسے انا، کانا، لاکنہ اور وغیرہ وغیرہ، اور بھی ہیں یہ، ان کو کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل۔ انا، انا، کانا، لاکنہ اور بھی ہیں، لیکن ابھی ہم نے صرف ان 4 پر ہی فوکس کرنا ہے، انہی کو سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آگے بڑھیں گے تو اور جو ہے ان کو بھی ہم آپ کے سامنے جو ہے کلیئر کر لیں گے کہ وہ اور جو انا کی بہنوں میں اور آتے ہیں ان کے علاوہ وہ کون کون سے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ تو اب سے پہلے ہم نے جو سبق پڑھا اس میں جو سادہ جملہ تھا اللہ غفور، اس میں پہلا اسم اللہ ہے اور غفور اس کی خبر ہے۔ تو یہ سادہ جملہ تھا، اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے۔ لیکن جب اس سے پہلے انا آئے گا، جب اس سے پہلے انا آئے گا تو انا کیا کیا چینجنگ کرے گا اپنے بعد آنے والے اسم میں، یہ کیا چینجنگ کرے گا یہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب اللہ غفور سے پہلے انا آئے گا تو پہلے یہ اپنے بعد جو اس کے اسم آئے گا اس کو جو ہے یہ زبر کی حالت میں کر دے گا، اس کو نصب دے دے گا۔ اب تک ہم کہہ رہے تھے اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، لیکن انا جب آ گیا تو اب کہیں گے ان اللہ غفور، یعنی یہ جو مبتدا ہے اللہ، اس کو جو ہے اللہ یہ کر دے گا، یہ اس کی پاور ہے۔ تو پہلے کیا ہے کہ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو زبر کی حالت میں کر دے گا، یعنی اس کو نصب دے دے گا۔ اور دوسری کیا ہوگا، اس کے ترجمے میں زور پیدا کر دے گا، وزن پیدا کر دے گا، گویا کے ترجمے کی کوالٹی کو بڑھا دے گا۔ جیسا ہم نے سمپل بات کہی، اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے۔ اگر ہم انا کے ساتھ کہیں گے تو ان اللہ غفور، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ تو دوسری بات کیا ہوگی
कि तर्जमे में वजन पैदा हो जाएगा, जोर पैदा हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि अब से पहले हम जब अल्लाह गफूरुन कह रहे थे तो हम कह रहे थे कि अल्लाह जो है मुब्तदा है, गफूरुन इसकी खबर है, तो मुब्तदा खबर का ये सादा जुमला हम कह रहे थे। लेकिन जब इन्ना आ जाएगा तो फिर अब इसको मुब्तदा खबर का जुमला नहीं कहेंगे, बल्कि अब कहेंगे कि अल्लाह जो है इन्ना का इसम है और गफूरुन इन्ना की खबर है। जी हाँ, अल्लाह इन्ना का इसम, गफूरुन इन्ना की खबर। तो इन्ना जब भी आएगा तो ये अपने बाद जो इसम होगा उसको जबर दे देगा। ये बात आपको याद रखनी है। और इसी तरीके से और भी हैं इसके साथ, जैसे हमने शुरू में पढ़ा इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, और भी हैं, इनके अलावा भी हैं, लेकिन अभी आप इतने पे ही रहेंगे। तो इन्ना का मतलब है बेशक, इसी तरह अन्ना का मतलब है के भी है, और आप के बेशक भी कह सकते हैं, के बेशक। इसी तरह का अन्ना का मतलब है गोया के, या आप जैसे के भी कह सकते हैं। और लाकिन्ना का तर्जमा है, लाकिन्ना का तर्जमा है लेकिन। तो अब हमने सादा जुमले जो प्रैक्टिस किए पहले, अल बैतु कबीरुन, अल बैतु इसमें मुब्तदा है, कबीरुन इसकी जो है खबर है। तो ये मुब्तदा खबर के जुमले थे। इस तरीके से हमने और भी जुमले पढ़े हैं, वो उनकी भी हमने प्रैक्टिस की है। लेकिन अब जब हम इन्ना इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल बैतु कबीरुन से इन्नल बैता कबीरुन, चेंजिंग हो गई, बैतु की बैता हो गया, और तर्जमा क्या हो गया, बेशक घर बड़ा है। क्या हो गया, बेशक घर बड़ा है। अच्छा, अल बैतु कबीरुन अन्ना के साथ क्या हो जाएगा, अन्नल बैता कबीरुन, के घर बड़ा है, या के बेशक घर बड़ा है। इसी तरीके से का अन्ना, गोया के या जैसे के। तो अल बैतु कबीरुन से पहले का अन्ना आएगा तो क्या हो जाएगा, का अन्नल बैता कबीरुन, गोया के घर बड़ा है। इसी तरीके से लाकिन्ना, लेकिन अल बैतु कबीरुन से पहले जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाकिन्नल बैता कबीरुन, लेकिन घर बड़ा है। तो अब आप जो है अल बैतु कबीरुन के साथ इन्ना को ऐड करेंगे। जी, तो मेरे बाद पढ़ेंगे, इन्नल बैता कबीरुन, बेशक घर बड़ा है, अन्नल बैता कबीरुन, के घर बड़ा है, या के बेशक घर बड़ा है। इसी तरह का अन्नल बैता कबीरुन, गोया के घर बड़ा है। लाकिन्ना यानी लेकिन, अल बैतु कबीरुन से पहले ऐड करेंगे तो लाकिन्नल बैता कबीरुन, लेकिन घर बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस सबक में हम काना और उसकी बहनें जैसे अस्बहा, अमसा और भी हैं, इनको अफ़आले नाक़िसा कहते हैं, अफ़आले नाक़िसा कहते हैं। इनकी किस्म तो तकरीबन ये 17 हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ यहां जो हम 3 देख रहे हैं इन्हीं पर आप फोकस करेंगे, इन्हीं पर आप ध्यान देंगे। तो और जो बचे हैं उनको भी हम क्लियर करेंगे, तो उनको समझना भी आसान हो जाएगा। अगर आपने ये 3 समझ लिए ना तो फिर उनका समझना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ये अफ़आल नाक़िसा जो है, नाक़िस जो है वर्ब हैं, ये नाक़िस वर्ब हैं, तो इनको कहते हैं अफ़आल नाक़िसा, यानी नाक़िस फ़ेल, अधूरे फ़ेल। जी, ये तकरीबन 17 हैं। कितने हैं ये 17 हैं अफ़आल नाक़िसा। नाक़िस का मतलब ये है कि अधूरे हैं। मतलब अगर यहां सिर्फ इतना है कि
कहीं फ़ैल और फ़ाइल से जो है बात मुकम्मल हो जाती है, जैसे जा मुस्लिमुन, एक मुसलमान आया। लेकिन काना जब भी आएगा तो इसको अफ़आल नाक़िसा इसलिए कहते हैं कि फ़ैल और फ़ाइल से इनके यहाँ बात पूरी नहीं होती है, इसलिए वहाँ मफ़ऊल भी लाना पड़ता है। चूँकि फ़ैल और फ़ाइल से बात पूरी नहीं होती, मफ़ऊल लाना पड़ता है, इसलिए इनको अफ़आल नाक़िसा कहते हैं। इनको अफ़आल नाक़िसा कहते हैं। इंशाअल्लाह भी हम जब प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको और ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस सबक में हम काना और उसकी बहनें जैसे अस्बहा, अमसा, इनको सीखेंगे। तो अब हम फिर अपने उसी जुमले की तरफ जाते हैं। कौन सा जुमला? मुब्तदा खबर का, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह जो है बख्शने वाला है। मुब्तदा खबर के ताल्लुक से हमने पहले ये बात बताई थी कि मुब्तदा जो है हमेशा अलिफ लाम के साथ आएगा और उसकी खबर बगैर अलिफ लाम के साथ आएगी। दूसरी बात यह है कि ये दोनों रफा की हालत में होंगे, पेश की हालत में होंगे। अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह की हा पर पेश है, गफूरुन की रा पे पेश है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई अल्लाहु के ऊपर दो, हा के ऊपर दो पेश क्यों नहीं है, तो आप कहेंगे कि जनाब इससे पहले जो है अलिफ लाम लगा है, और जब भी अलिफ लाम किसी इसम से पहले लगेगा तो उस पर फिर दो जबर की तनवीन नहीं आएगी, फिर वो एक ही, चाहे पेश हो तो एक, जबर हो तो भी एक, जेर हो तो भी एक ही आएगा। जी हाँ। और गफूरुन की राह पे दो पेश क्यों है, तो आप कहेंगे ये बगैर अलिफ लाम के है। अलिफ लाम के जो साथ होता है उसको अरबी जबान में मारिफा कहते हैं, और जो बगैर अलिफ लाम के साथ होता है उसको अरबी जबान में जो है नकरा कहते हैं, यानी बगैर अलिफ लाम के। तो ये दोनों किसकी हालत में होते हैं? रफा की हालत में। अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह बख्शने वाला है। जी, अब हम इसको काना के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि अगर इससे पहले काना आएगा तो फिर क्या चेंजिंग होगी। चूंकि काना जब इन्ना आया है तो उसने भी चेंजिंग की थी, तो काना जब आया है, इसको लेकर आए हैं, तो जाहिर बात है कि इसका भी कुछ असर होगा, कुछ पावर होगी, जो ये भी अपनी पावर को यूज करेगा, ये भी अपनी पावर को इस्तेमाल करेगा। तो काना अपने बाद आने वाले इसम को कुछ नहीं कहता है, बल्कि ये नसब जो इसकी खबर होती है ना, उसको ये नसब की हालत में कर देगा, यानी उसको ऊपर ये जबर ले आएगा। जैसे हम कह रहे थे अल्लाहु गफूरुन, अब काना के साथ क्या होगा? कान अल्लाहु गफूरन, यानी काना जो है ना अपनी बाद आने इस इसम को छेड़ेगा नहीं, और जो खबर होगी उसको ये छोड़ेगा नहीं। इसम को छेड़ेगा नहीं और खबर को छोड़ेगा नहीं। तो इसकी पावर जो चलती है वो अपने बाद आने वाले इसम पर नहीं चलती, बल्कि उसकी खबर पर ये अपनी पावर को दिखाता है। तो कान अल्लाहु गफूरन, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह बख्शने वाला है। तो यहां भी इसी तरीके से जैसे इन्ना के साथ था, अब इसको मुब्तदा और खबर की तरकीब नहीं कहेंगे, अब ये कहेंगे कि भाई अल्लाहु तो काना का इसम है और गफूरन जो है ये काना की खबर है। इन अल्लाह काना का इसम और गफूरन काना की खबर। तर्जमा क्या होगा? अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह बख्शने वाला है। तो चूंकि हम कुरान से मुताल्लिक ही बात कर रहे हैं, इसलिए हम कुरानिक मिसाल ही इस्तेमाल करेंगे, कुरानिक मिसाल ही यूज करेंगे। जी, और काना के असल जो माने हैं और जो इसकी किस्में हैं, इंशाअल्लाह उसके लिए हम एक मुस्तकिल आपको क्लास में पढ़ाएंगे, मुस्तकिल बताएंगे कि काना कितने तरह का होता है। लेकिन अभी आप जो है इतना ही याद रखेंगे कि अभी जो ये काना है ये अफ़आल नाक़िसा है। तो ये क्या करेगा? अपनी खबर को जो है मंसूब कर देगा, नसब की हालत में कर देगा, जबर की हालत में कर देगा। जी,
हमने आपको बताया था कि जो असली हालत होती है किसी भी लफ्ज की वो एक पेश के साथ हो या दो पेश के साथ हो, तो यही असली हालत है। और जो नसब की हालत है, असर पड़ने की हालत है, वो चाहे एक जबर के साथ हो या फिर दो जबर के साथ हो, तनवीन के साथ हो। तो रफा का जो इशारा है वो गोया के रेडी है काम के लिए, उसके लिए बिल्कुल जैसे खड़ा रहता है ना आदमी, इस तरह एक उंगली का इशारा ऊपर की तरफ करेंगे। और नसब चूंकि ये मफूली हालत है, असर पड़ने की हालत है, तो उंगली का इशारा होगा आड़ी, आड़ी तरह से करेंगे। जी हाँ। अच्छा, तो अल्लाह गफूरुन, अल्लाह बख्शने वाला है। अब काना के साथ जब काना लेकर आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कान अल्लाहु गफूरन, अल्लाह बख्शने वाला है। तो एक मर्तबा जो है अल्लाह गफूरुन में बोलूंगा, आप इन काना को ऐड करेंगे, काना को जो है यूज करेंगे और फिर तर्जमा भी बताएंगे। और इसमें क्या असर हुआ है वो अपनी पढ़ने के दौरान ये बात को साफ कर देंगे कि उससे जुमले में क्या फर्क पड़ा, क्या था और क्या हो गया। जैसे अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह बख्शने वाला है, काना के साथ क्या हो जाएगा जी, कान अल्लाहु गफूरन, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह बख्शने वाला है। तो यहां अगर आपको ज्यादा बात भी याद ना रहे तो आप सिर्फ इतना ही याद रखेंगे कि काना जो है अपनी खबर को मंसूब कर देता है, यानी जबर की हालत में कर देता है। काना अपनी खबर को मंसूब कर देता है, यानी खबर को जो है जबर की हालत में कर देता है। या आप इस तरह भी रख सकते हैं कि काना दूसरे लफ्ज के ऊपर असर करके उसको जबर में कर देगा, ये भी आप याद रख सकते हैं, ये इसकी पावर है। अच्छा, तो कुरान से इस कायदे की बेहतरीन मिसाल इससे अच्छी और क्या मिलेगी आपको, कान अल्लाहु गफूरन रहीमन, अल्लाह बख्शने वाला और खूब रहम करने वाला है। काना फैल है, अल्लाह इसम है, और गफूरन क्या है, गफूरन क्या है, ये इसकी खबर है, ये इसकी खबर है, इसलिए जबर के साथ आया है। और रहीमन ये भी खबर है, ये दूसरी खबर है, ये दूसरी खबर है। तो ये दोनों खबर मिलके, गफूरन और रहीमन दोनों खबर मिलके ये जो है इन्ना की खबर हो जाएंगी। तो अल्लाह काना का इसम और गफूर रहीमन ये काना की खबर हो जाएगी। कान अल्लाहु गफूर रहीमन, अल्लाह जो है बख्शने वाला और खूब रहम करने वाला है। एक मरतबा मेरी बात दोहराएंगे इसको, कान अल्लाहु गफूर रहीमा, अल्लाह ताला खूब बख्शने वाला और खूब रहम करने वाला है। जी, अब हम इसकी कुछ और मिसालें लेते हैं और फिर उसमें काना को ऐड करते हैं। जैसे हमने कहा हूदुन नबीयुन, हूद अलैहिस्सलाम एक पैगंबर हैं। हूदुन ये हूद है, ये जो है ये इसमें खास है, लेकिन इसके ऊपर तनवीन आई है, अलिफ लाम नहीं होता इसमें। जो खास जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसको जानते हैं तो वहां उसको जो है तनवीन अलिफ लाम लगाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। जैसे हूदुन नबीयुन, हूद अलैहिस्सलाम एक नबी हैं, पैगंबर हैं, लेकिन काना को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, काना हूदुन नबीयन। इसी तरह ज़ैदुन सगीरुन, ज़ैद छोटा है, काना लगाएंगे तो काना ज़ैदुन सगीरन, यानी दूसरा जो लफ्ज है ये नसब की हालत में हो जाएगा, यानी जबर की हालत में आ जाएगा। जी, इसी तरह सादुन कबीरुन, साद बड़ा है, काना ऐड करेंगे, काना सादुन कबीरन, साद बड़ा था, काना का मतलब था है ना, तो क्या होगा, हूदुन नबीयुन से काना को ऐड कीजिए, काना हूदुन नबीयन, हूद अलैहिस्सलाम नबी थे। ज़ैदुन सगीरुन से पहले काना को ऐड करेंगे, काना ज़ैदुन सगीरुन, काना ज़ैदुन सगीरन,
زید چھوٹا تھا. سعدن کبیرن, کانا کو ایڈ کریں گے, کانا سعدن کبیرن, سعد بڑا تھا. تو ایک مرتبہ میں سادہ جملے بغیر کانا کے کہوں گا, آپ اس میں کانا کو ایڈ کریں گے بس, اور اس کا کیا اثر ہوگا وہ بھی آپ ظاہر کر دیں گے. جیسے ہود نبی, جی کانا کے ساتھ, کانا ہود نبی, سعد صغیر, زید چھوٹا ہے, کانا کو ایڈ کیجئے, کانا زید صغیرن, زید چھوٹا تھا. اسی طرح سعد کبیر, کانا کو ایڈ کریں گے, کانا سعد کبیرن, سعد جو ہے بڑا تھا, سعد بڑا تھا. تو اب ایک مرتبہ آپ صرف بغیر ترجمہ کے عربک الفاظ کو ہی کانا کو ایڈ کیجئے اور اس کی پریکٹس کیجئے. ہود نبی, کانا ہود نبیا. زید صغیر, کانا زید صغیرا. سعد کبیر, کانا سعد کبیرا. یہاں دوسرے لفظ کو جو ہے یہ زبر کی حالت میں کر دے گا. جی اچھا, اب ہم لیتے ہیں الف لام کے ساتھ کچھ جملے. وہ تنوین کے ساتھ تھے, جو ابھی ہم نے پریکٹس کی ہے وہ تنوین کے ساتھ تھے. اب اس کو ہم الف لام کے ساتھ لیں گے. جیسے المسلم, وہ خاص مسلمان, صادق سچا ہے. المسلم صادق, المسلم مبتدا ہے, صادق اس کی خبر ہے. اسی طرح المؤمن صالح, المؤمن مبتدا ہے, صالح اس کی خبر ہے. المنافق فاسق, منافق اس کا مبتدا, فاسق اس کی خبر ہے. جی تو مبتدا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے جو ہے جملہ اسٹارٹ ہو رہا ہے, یہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے, اس لیے اس کو مبتدا کہتے ہیں. یعنی یہاں سے جملے کو ہم شروع کر رہے ہیں. جی تو اس سے کے سامنے ہم کانا کو جو ہے ایڈ کریں گے اس میں. تو المسلم صادق, مسلمان سچا ہے, یہ سادہ جملہ تھا. اب ہم اس میں کانا کو ایڈ کریں گے. کان المسلم صادقا, مسلمان سچا تھا. المؤمن صالح, کانا کو ایڈ کیجئے, کان المؤمن صالحا, ایمان والا نیک تھا. المنافق فاسق, منافق گنہگار ہے. کان المنافق فاسقا, منافق گنہگار تھا, منافق گنہگار تھا. تو میں سادہ جملے کہوں گا اور آپ اس کے ساتھ کانا کو ایڈ کریں گے بس. المسلم صادق, مسلمان سچا ہے. کان المسلم صادقا, مسلمان سچا تھا. المؤمن صالح, ایمان والا نیک ہے. کان المؤمن صالحا, ایمان والا نیک تھا. المنافق فاسق, منافق گنہگار ہے. کان المنافق فاسقا, منافق گنہگار تھا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ کانا جو ہے اپنے بعد آنے والے اسم کو کچھ نہیں کہے گا, اور اپنے بعد آنے والی خبر کو جو ہے اس پر اپنی پاور دکھائے گا, اس کو چھوڑے گا نہیں. تو اس پر کیا پاور ہے کہ وہ پیش کے ساتھ جیسے صادقن تھا تو اس کو صادقن کر دیا, یعنی یہاں زبر لا دیا. یہ کانا کی پاور ہے. اب ہم مؤنث کے لیے کچھ مثالیں لیتے ہیں. جیسے ہم نے اب سے پہلے پریکٹس کی تھی, المسلمۃ صادقۃ, مسلمان عورت سچی ہے. المؤمنۃ صالحۃ, مومنہ عورت نیک ہے. المنافقۃ فاسقۃ, منافق عورت گنہگار ہے. تو یہ ہم نے پریکٹس کی ہے, اور یہ مبتدا اور خبر کی سادہ سے جملے ہیں, بالکل سمپل, بہت سمپل جملے ہیں. کیونکہ المسلم صادقۃ جو ہے, المسلم مسلمۃ مبتدا ہے اور صادقۃ اس کی خبر ہے. لیکن اب ہم اس میں کانا کو ایڈ کریں گے. اب کانا کو جب ایڈ کریں گے تو چونکہ یہ مؤنث کے الفاظ ہیں, یہ مؤنث کے الفاظ ہیں, المسلمۃ صادقۃ مؤنث کے لیے استعمال ہوئے ہیں, تو جو ہم فعل لے کر آئیں گے نا وہ بھی مؤنث کا ہی لے کر آئیں گے.
काना की जगह कानत लेकर आएंगे। हमने सीखा ना, हुआ काना हिया कानत, हुआ यकूनु हिया तकूनु। तो अब यहां क्या लेकर आएंगे? कानत को लेकर आएंगे। अगर हम कहेंगे कानल मुस्लिमत, यानी मुअन्नस का नहीं लेकर आएंगे, तो फिर ये हमारा जुमला जो है सही नहीं रहेगा, ये गलत हो जाएगा। ये मैच करना है हमें यहां। तो कानतिल मुस्लिमतु सादिकतुन, अब कानत लेकर आएंगे। काना से कानत मुअन्नस के लिए हमने सीखा। तो यहां कानतिल, ये ता के नीचे जेर इसलिए आया है ताकि हम अगले जो है जुमले से अगले इसम से इसको मिला सकें। है ये कानत, लेकिन अब चूंकि हमें मिला के पढ़ना है यहां, इसलिए यहां इसके नीचे जेर लेकर आए हैं। तो क्या हो जाएगा? कानतिल मुस्लिमतु सादिकतन, मुसलमान औरत सच्ची थी। इसी तरह अलमुमिनतु सालिहतुन से कानतिल मुमिनतु सालिहतन। इसी तरह अलमुनाफिकतु फासिकुन से क्या हो जाएगा? कानतिल मुनाफिकतु फासिकतन। जी, तो ये मुब्तदा खबर के पहले सादा जुमले थे। अब हम इसमें काना को ऐड कर रहे हैं। आप जो है कानत के साथ इनको दोहराएंगे, क्योंकि मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुए, इसलिए काना की जगह कानत का इस्तेमाल होगा। अल मुस्लिमतु सादिकतुन, मुसलमान औरत सच्ची है। कानतिल मुस्लिमतु सादिकतन, मुसलमान औरत सच्ची थी। अल मुमिनतु सालिहतुन, मोमिना औरत नेक है। कानतिल मुमिनतु सालिहतन, मोमिना औरत जो है नेक है, नेक थी, मोमिना औरत नेक थी। अल मुनाफिकतु फासिकतुन, मुनाफिका औरत गुनहगार है। कानतिल मुनाफिकतु फासिकतन, मुनाफिका औरत गुनहगार थी। जी हाँ, अब हम लेते हैं इसकी जमा बनाना सीखते हैं। अल मुस्लिमु, तो अल मुस्लिमु की जमा क्या होगी? अल मुस्लिमूना। अल मुस्लिमू की जमा क्या होगी जी? अल मुस्लिमूना। ये असली हालत है, फाइली हालत है, रफा की हालत है। और अल मुस्लिम, आप देखेंगे कि यहां अल मुस्लिमू की जमा अल मुस्लिमूना क्यों बना है? जवाब देंगे आप इसका? भाई यहां अल मुस्लिमू की जमा अल मुस्लिमूना क्यों बना है? अल मुस्लिमीना क्यों नहीं बना? आप बताइए। हमने ये बात आपको पहले भी बताई थी, फिर आज भी दोहरा देते हैं कि अल मुस्लिमू, अगर वाहिद इसम के आखिरी हरफ पर, आखिरी हरफ क्या है इसमें? मीम है। अल मुस्लिमू अगर उसका ऊपर पेश आएगा तो जमा वाव नून के साथ बनेगी, और असर पड़ने की सूरत में क्या हो जाएगा? ये अल मुस्लिमा, यहां जबर आ जाएगा, या जर के बाद आएगा तो क्या हो जाएगा? अल मुस्लिमी, यहां जो है मीम के नीचे जेर आ जाएगा। तो जबर और जेर आने की सूरत में जो जमा बनेगी वो यानून के साथ बनेगी। तो अल मुस्लिमू की जमा अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमा की जमा अल मुस्लिमीना। एक मरतबा फिर, अल मुस्लिमू की जमा क्या है? अल मुस्लिमूना। अल मुस्लिमा की जमा क्या है? अल मुस्लिमीना। जी हाँ, अब हम इसको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं और काना इसके साथ ऐड करते हैं। जैसे अल मुस्लिमून सादिकून, मुसलमान सच्चे हैं। तो अब इसके साथ हम काना को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कानल मुस्लिमून सादिकीना, मुसलमान सच्चे थे। अल मुमिनून सालिहून, ईमान वाले नेक हैं। अब काना ऐड करेंगे, कानल मुमिनूना सालिहीना, ईमान वाले नेक थे। अल मुनाफिकून फासिकूना, मुनाफिक गुनहगार हैं। काना को ऐड कीजिए, कानल मुनाफिकूना फासिकीना, मुनाफिक फासिक थे। मुनाफिकीन जो क्या है? फासिक थे, गुनहगार थे। तो अब आप एक बात और आ गई यहां। अब जैसे हमने कहा अल मुस्लिमूना सादिकूना, लेकिन काना लगाया हमने, तो अल मुस्लिमूना जो जमा बना है तो सादिक
यफ़क़ून जमा क्यों नहीं बना? इसका क्या जवाब है आपके पास? इसका जवाब यह है कि जी काना अपने बाद आने वाले इसम को कुछ नहीं कहता है, वो अपनी खबर पर अपनी पावर दिखाता है। पावर क्या होगी इसकी? वो अपनी खबर को जो है जबर के साथ कर देता है। और ये बात हमने बताई है कि जब भी इसम के आखिर में जबर आएगा तो उसकी जमा या नून के साथ आएगी, इसलिए यहां या सादिकीना या नून के साथ इसकी जमा आई है। सिंपल सी बात है जी। तो अब आप, मैं सादे जुमले कहूंगा और आप काना उसके साथ ऐड करते जाएंगे और तर्जमा भी होगा जी। अब जवाब दीजिए, आप तैयार रहिए। अल मुस्लिमून सादिकून, मुसलमान सच्चे हैं। कानल मुस्लिमून सादिकीना, मुसलमान सच्चे थे। अल मुमिनून सालिहून, ईमान वाले नेक हैं। कानल मुमिनून सालिहीना, ईमान वाले नेक थे। अल मुनाफिकून फासिकून, मुनाफिक गुनहगार हैं। कानल मुनाफिकून फासिकीना, मुनाफिक गुनहगार थे। तो ये काना में हमने जो है जमा के अल्फाज के साथ काना को ऐड किया और फिर इसका तर्जमा करने की भी प्रैक्टिस की जी। तो काना, जैसा हमने कहा कि काना और इसकी बहनें आज हम सीखेंगे। तो काना को हमने जो है जुमले में यूज कर लिया है, इस्तेमाल कर लिया है और इसकी पावर भी देख ली है। तो सेम पावर जो काना की है ना, वही पावर अस्बहा की भी वही पावर है और अमसा की भी वही पावर है। अस्बहा का मतलब है सुबह की या हो गया, ये दो माने आते हैं, इसके दो माने कर सकते हैं आप। सेंटेंस के हिसाब से सुबह की या हो गया, उस तरीके से तर्जमा आप कर सकते हैं। इसी तरह अमसा का मतलब है शाम की, या फिर इसका मतलब भी हो गया, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जुमलों में इसका क्या रोल है। जैसे सादा जुमला था, क्या था? अल बैतु कबीरुन, काना के साथ क्या हो गया? कानल बैतु कबीरन। अस्बहा यानी हो गया, अस्बहा का मतलब है हो गया। अल बैतु कबीरुन के साथ ऐड कीजिए इसको, अस्बहल बैतु कबीरन, घर बड़ा हो गया। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि भाई सुबह तक घर बड़ा हो गया, गोया कि रात भर उसमें काम चला और सुबह को जब देखा गया तो वो घर बड़ा हो गया। तो अभी आप जो है यही कहिए घर बड़ा हो गया। तो अस्बहल बैतु कबीरन, घर बड़ा हो गया। इसी तरह अमसा, अमसल बैतु कबीरन, शाम तक घर बड़ा हो गया, गोया कि दिन भर उस पर जो है काम चला है और शाम को वो बड़ा हो गया जी। तो अब अलबैतु कबीरुन पे इन तीनों को हम ऐड करके देखेंगे जी। अलबैतु कबीरुन काना के साथ क्या हो जाएगा? कान अलबैतु कबीरन, घर बड़ा था। अलबैतु कबीरुन से पहले अस्बहा को भी हम इस्तेमाल करेंगे, इसको ऐड कीजिए, अस्बहल बैतु कबीरन, घर बड़ा हो गया। अमसा के साथ अमसल बैतु कबीरन, शाम तक घर बड़ा हो गया, शाम तक घर बड़ा हो गया। यानी इस हालत में मैंने शाम की कि घर बड़ा हो गया, घर बड़ा हो गया जी। तो यही इनकी सेम पावर है। तो एक मर्तबा और काना के साथ अलबैतु कबीरन को कान अलबैतु कबीरन, अस्बहा के साथ क्या होगा? अस्बहल बैतु कबीरन। अमसा के साथ क्या होगा? अमसल बैतु कबीरन। जी हाँ, तो ये है इसकी पावर। अब तक हमने 4 किस्म के जुमले सीखे हैं। इस्मिया अल्लाहु गफूर, इन फेलिया खलक़ल्लाहु अल अर्दा, इन्ना के साथ इन्नल्लाह गफूरुन और काना के साथ कान अल्लाहु गफूरन। तो एक मर्तबा आप जवाब दीजिए मुझे। इस्मिया अल्लाहु गफूरुन, फेलिया खलक़ल्लाहु अल अर्दा, इन्ना के साथ इन्नल्लाह गफूरुन, काना के साथ कान अल्लाहु गफूरन जी। तो आज का सबक इतना ही।
दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी कोई सवाल है, कोई बात इसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद समझ में ना आए तो आप हमारे नंबर पर जो है हमसे राब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये बात मुझे समझ में ना आई। इंशाअल्लाह उसकी मुकम्मल और अच्छी तरीके से रहनुमाई की जाएगी। उसके उस कंफ्यूजन को, जो ना समझ में आ रही है उस बात को क्लियरली जो है उसको समझा दिया जाएगा।